something? Yes, ma'am. Yes, ma'am, everything. Fine. Today, what we are going to discuss about, that is, already we have talked about community in the very beginning lectures, that what is community and how we can define and evolve community and how it is formed by when the group of people come together or get together for one purpose, for one reason, for one problem, that is community. Uh, Wait a minute. There's someone waiting room. Okay. So today we will see that what are the types of community and how these types of communities are formed and why we differentiate them into different types. Why we can't say that community is just community and उसमें फिर different types क्यों हैं और कैसे बनती हैं types. This is our today's discussion and we will come towards this one first. Okay. So let me share the screen with you people. Towards Ma'am, please allow the student. Visible to you? Yes, ma'am. Ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, allow the students that are in waiting room. Students are in waiting. Yes, ma'am. Yeah, because I can't allow them. There are 100 participants already, so that's why students are in waiting. I No, can't. there are 98 participants. Now. Okay. कर देती हूँ admit but there are 100 showing, right? Fine. 99. Okay. So come to the topic. Community, we are going to discuss about community. A community is a group of people who share something in common. And community can be defined by the shared attributes of the people in it and or by the strength of the connection among them. And this is already we know that how a community is formed. A community is a group of people who share something in common. And what's something? Something that can be their interests, something can that be their problems, their issues, their objectives, and anything it as a common task they want to do. That is, and they get together for that. That is a community. So a community can be defined by the sharing the attribute of the people, like a group of people or a number of people when they get together and get in connection with each other for sharing different interests and different actions. So that is a community formed. And it is a bunch of people who are alike in some way, to feel some sense of belonging or interpersonal connection. कि उनकी जो interests होते हैं और जो उनका like आप कह लें कि setup, living setup कह लें या उनका social setup कह लें, that is same हो, then those people can get together. Obviously, when अगर आपका ideas, mentality, आपके setups differ करेंगे, so how you the people can get together or form a group. And it's obvious that people having the same interest, same attitude, they can get together for making a community. So different type of communities. इसमें जब हमने जैसे पीछे वो बात की है कि हम कहते हैं कि वो लोग जो एक ग्रुप बनाते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम हो या जिनकी लाइकिंग सेम हो, जिनकी प्रॉब्लम सेम हो, इश्यूज सेम हो, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट के हाउ, which type of interest, which type of actions and ये इंटरेस्ट और जो सिमिलैरिटी है ये जियोग्राफिकल भी हो सकती है. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिटी जिसमें जियोग्राफिकली देखते हैं
कि the people who are living or who are belonging to one area, the same area, they can also form a community. So come towards this. मैम ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक एरिया में रहने वाले मुख्तलिफ लोगों के इंटरेस्ट चेंज भी तो हो सकते हैं. हाँ, इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं, बट आई एम सेइंग दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, उसमें हम अभी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि एक एरिया में रहने वालों की कम्युनिटी कैसे बन सकती है. दैट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड. दिस इज ऑल्सो अ टाइप. हाँ, उनके इंटरेस्ट बेशक डिफर हो, लेकिन उसमें क्या रीजन ऐसी बनती है कि हम जियोग्राफिकली भी देखते हैं कि एक टाइप बनती है कम्युनिटी की. वो कैसे बनती है उसको मैं अभी आपको नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ. अभी उसकी तरफ आ रहे हैं. अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट से. कम्युनिटीज ऑफ पीपल. अच्छा, एक बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ, इस चीज को कोट करती हूँ, तो वट एवर द एग्जाम्पल्स आई एम कोटिंग हियर in these slides or the lecture which I have prepared for you people, don't stick to these. Whatever the examples you see, you think and you observe, you can add in them. आप अपने इस तक stick ना हो. This is just for the explanation. Only one or two examples, because just there is a shortage of time and we can't discuss the topic in that much detail which it requires. इतना डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर पाते, ना ही आप लोगों से मैं इस तक फीडबैक उस तरह ले सकती हूँ जैसे फेस टू फेस लर्निंग में होता है. तो इसको आप ये सोचें कि दैट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन इफ आई एम कोटिंग वन और टू एग्जांपल्स, बट दैट इज नॉट ऑल. कि ये सारा नहीं उस टॉपिक को चीज कवर करती, उसमें आप ऐड कर सकते हैं उस तरह की एग्जांपल्स जैसी आपको दी जाती हैं. ठीक है, तो उससे रेलिवेंट आप खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हो. यही नहीं कि आप इस पे ही स्टिक करो और इन्हीं एग्जांपल्स कोट कर सकते हो. राइट. सो कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट और पैशन. पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट्स और पैशन कैन टुगेदर form a community, and its example is a community of impotents. Do you have any idea about impotents? These communities do not have much strict code of rules because they are limited to the breadth and scope of the interest. Okay, I tell you that this is a type of people who, to whom we call the third gender, that not belonging to male and female gender. So you know that there is a separate community for them. That this is just an example of people who are having the same common interests and their target of life, the scope of life is same. अब जब हम इंडिविजुअल यहाँ पे एक एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ उस एक चीज को ही देखेंगे कि जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट सेम हो, वो कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं. उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ कुछ कम्युनिटीज जिनमें इंटरेस्ट भी सेम हो, एक्शन भी सेम हो और सब. हाँ, हो सकती हैं ऐसी कम्युनिटीज भी, लेकिन सबसे पहले हम उन कम्युनिटीज को डिस्कस करेंगे जिनमें के एक एक चीज स्पेसिफिक है. कि अगर हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ उसके इंटरेस्ट ही सेम हो, उनका स्कोप ऑफ लाइफ सेम हो, सिर्फ वो चीज देखेंगे. So here I have quoted the examples of impotent people that who are not belonging to any gender, the main gender types like male and female. So they have their separate community. Their living style, their interests, their focus on life, everything is same for all of them. That's why they are living in a separate or different community. वैसे ऐसा होना तो नहीं ना चाहिए. बेटा हम अभी चीज उसको डिस्कस कर रहे हैं कि that what is, not about that what should be. ठीक है, तो इस पे एक separate एक debatable topic है ये, but here this time we are going to focus on this, that what is happening and how the communities are formed. Right. Second type of community that is based on the action. Communities of people trying to bring about change. अब कुछ ऐसी communities बनती हैं जिसमें लोग, group of people, they try to bring the changes in their locality. A community can also be made up of people who are acting together to bring a change. For example, a community of feminists. There can be
various shades of such types of communities as well. अब ये वही बात कि यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल कोट की जाती है just for the explanation, not that is all. तो इसी तरह की और बहुत सी कम्युनिटीज बनती हैं जो कि फॉर द बेटरमेंट और फॉर द चेंज बनाई जाती हैं और बनती हैं. लोगों के ग्रुप्स एक कम्युनिटीज बनाते हैं, लाइक फेमिनिस्ट कम्युनिटी आजकल बहुत इसका चल रहा है, हमारे यहाँ भी एंड ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज आल्सो. तो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ community that is formed due to the common action that people who do activities or perform activities for one task, that is also a type of community. Every culture and philosophy interprets these actions differently. अब feminist की बात जो है, इस्लामिक बिलीफ रखने वाले जो सोसाइटीज हैं या कंट्रीज हैं, वहां पे इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है. फेमिनिस्ट जो बात करते हैं वो इसको और तरह लेंगे. जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे जब इस पे बात होती है, दैट इज देयर द वर्ड इज यूज्ड सेम, बट the same word they will use, the same word here we use, but the philosophy and the interpretation is different. So when the philosophy is different, the culture is different, interpretation is different, so action will also be different. कि उस तरह यहाँ पे नहीं हो सकता जैसा कि किसी और जगह पे, और किसी और जगह पे उस तरह नहीं हो सकता जैसा यहाँ पे हो सकता है. So this thing can be differ, but the main action is same, the cause of action is same, that is feminist people who are working for the rights of women rights और इनके दूसरे issues हैं उस पे बात करते हैं. Then come to the community of people which is formed due to the place. One minute, please. Sorry for the interruption, में थोड़ा break लिया. Okay जी, communities of people brought together by geographic boundaries, coexistence in a geographical area can also be shaped up a community. अब यहाँ पे ये बात आती है place की. अच्छा, अभी आपने बात की थी यहाँ से, आप I don't remember the name of the student, कि जो प्लेस के अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि कम्युनिटी फॉर्म होती है, उसमें तो इंटरेस्ट्स भी सेम होते हैं, हो सकते हैं, और कुछ लोगों के सेम नहीं भी हो सकते, डिफर भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम इस पर बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अ कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम expats in Poland. This is a hybrid form of both interest and action type of community. अब इसमें यहाँ पे ये देखें, अभी अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे इसको, तो थोड़ी आप इसकी एक्सप्लेनेशन इस एग्जांपल की और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स फिर आपको सामने आ जाएंगी कि पोलैंड में जो एक मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे एक सेपरेट, जैसा कि हमारे यहाँ अभी मैंने आपको से इम्पेजेंट पीपल की बात की है कि बनाएगी, इसी तरह मुस्लिम लोगों की एक कम्युनिटी बनाई गई है, और जिसमें कि उनके इंटरेस्ट और एक्शन जो है दोनों टाइप ऑफ कम्युनिटी मिक्स हो जाती है. कि अगर कुछ लोग सेम इंटरेस्ट रखने वाले हैं उसमें, तो कुछ ऐसे हैं जो कि सेम एक्शन जिनका, जो कि किसी एक टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो एक मिक्सचर है, दैट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड एक्शन टाइप ऑफ कम्युनिटीज. सो द जियोग्राफिकल लोकेशन serves also in the concept of nationalism and nation state. अब वहाँ पे अभी जो एग्जांपल है यहाँ पे कि पोलैंड में जो मुस्लिम्स के एक अलग
कम्युनिटी बना दी गई है उसमें ऑब्वियसली उनके इंटरेस्ट सेम है कि वो मुस्लिम हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उसके बाद जो उनका एक्टिविटीज हैं जो वो एक्ट करते हैं जिस भी टास्क के लिए वो भी ऑलमोस्ट सेम ही हो सकता है। एंड इफ अगर नहीं भी है तो उसमें फिर नेक्स्ट कैटेगराइज हो जाती हैं जिनको हम कम्युनिटी ही कहते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी बट एट अ स्मॉलर लेवल, एट अ लोअर लेवल। छोटी छोटी सी अपनी कम्युनिटी बन जाए जिनके इंटरेस्ट सेम हो। तो लेकिन जनरली अगर देखें तो वो जी मैम जैसे हम लास्ट में टाइम लेक्चर वो वाले लेक्चर में हम लोग कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, आपने ये बताया था ना कि ये मैन मेड होता है। तो जैसे वो उसमें शायद शादियों की बात हो रही थी तो सलामी की जो बात हुई थी जी जी तो वो भी मैन मेड ही है, क्योंकि हमारे इधर हमारे गांव में ये रिवाज है कि मतलब जिनकी भी एक बेटी हो ना तो जब शादी होती है ना तो वो पैसे नहीं लेते उनकी सलामी में। तो ये भी कल्चर की एग्जांपल ही है ना, एक तरफ जो बन गया बेटा दिस इज मैन मेड। देखिए ना ये हम क्यों कहते हैं कि ये अडेप्टिव है कि आप जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है ये और उसके ये खुद से अडेप्टेड है। कोई इसका ये नहीं है कि आप पे लागू किया गया नहीं होता कल्चर। मैं फिर अगर हम उसको ना अपनाए मतलब हम लोग करें कि हमने लेने हैं या जिनकी मैं भी एक हूँ तो सारी जिंदगी दे दे के बंदा लेना, ये भी तो बात गलत है ना। हाँ ये भी है लेकिन अगर उनका है कि वो कर सकते हैं दैट इज अफोर्डेबल फॉर देम एंड दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो दैट कल्चर। तो ये भी कुछ लोग होते हैं रिबेलियन नेचर रखते हैं जो चेंज लेके आते हैं और चेंज लाना चाहते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है नो डाउट। मैं भी एग्जांपल मैम लेकिन जब ईमान के भाई भी तो है ना, तो उनके जरिए वो जब उनका वलीमा करेंगे तो तब वो ले लेंगे। एक्सक्यूज मैम। जी जी मैम आपसे पूछना था ये क्लास एमएससी के लिए भी है या बीएस की है? क्योंकि मैम आपने एमएससी गर्ल्स को लिंक सेंड किया और हमारी क्लास मोस्टली गर्ल्स की ज्वाइन भी नहीं हो रही, पार्टिसिपेंट 100 से ज्यादा होने की वजह से। ओके ये इशू जो है ये आपके जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं उनसे मैंने डिस्कस किया था एंड ही सेड मी टू टेक द क्लास एज पर स्केड्यूल। ठीक है जी। उसकी वजह कि ये चेंज आ रहा था और अब मैंने उनसे इस वीक में रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसा करें कि एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मंडे की क्लास में फ्री हूँ उस दिन तो मैं उस दिन क्लास ले लूंगी। ठीक है जी। मॉर्निंग में उनका टाइम अवेलेबल है। तो अभी उन्होंने मुझे टाइम टेबल चेंज करके नहीं दिया तो इसलिए because it's my duty that if the scheduled class is on Wednesday on this time, I will send the link to all the students who are on that day given to me that this is my class on this day. तो मैम आई थिंक तो आपने बॉयज को लिंक नहीं सेंड किया फिर, क्योंकि हमारी क्लास के बॉयज नहीं है क्लास में। एक बॉयज को लिंक सेंड क्यों नहीं किया मैंने? बॉयज के सीआर कौन है? हसन नहीं है? नो मैम। मैम मैं तो पीएस का हूँ। मैम मैं एमएससी की बात कर रही हूँ। एमएससी के बॉयज को नहीं सेंड किया? आई थिंक सो मैम, क्योंकि एक भी लड़का नहीं है क्लास में और गर्ल्स ग्रुप में भी यही मैसेज आ रहा है कि कनेक्ट नहीं हो रहा मोस्टली स्टूडेंट का। हाँ चलिए ठीक है। मैं आप ऐसा करें कि अभी जो क्लास एमएससी के हैं स्टूडेंट्स आई पार्डन मी प्लीज, आप इसके लिए थोड़ा सा बॉदर करें कि आज के लिए फिर ऐसा करें कि क्लास आप हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर एट दिस टाइम? मैम 11 और 12 स्टूडेंट, जस्ट 11 और 12 स्टूडेंट। सो बेटा जी यू मे लीव। आप ऐसा करें कि आपकी मैं अभी कोऑर्डिनेटर से दोबारा इवनिंग में बात कर लेती हूँ तो मैं ये वीकेंड पे या किसी दिन इस वीक की क्लास जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक से मैंने उनसे कहा है, स्ट्रिक्टली मैंने बल्कि बात की है कि मैं आई कांट मैनेज, क्योंकि बहुत मोस्टली अटेंडेंस का भी मसला बन जाता है, लेक्चर का भी। तो मैं ज्वाइन क्लास नहीं ले सकती तो मैं मंडे को आप लोगों की क्लास मॉर्निंग में लूंगी। ठीक है तो मैम आप डिस्कस ना करें, आप मंडे को ही क्लास ले लें, क्योंकि मंडे को हमारा सिर्फ एक लेक्चर होता है 11 बजे, उसके अलावा हम सारा टाइम फ्री हैं। एमएससी की बात कर रहे हैं आप? मैम एमएससी मैथ 2 एमएससी की। हाँ तो बस ठीक है ना। आप मैंने यही बात की है उनसे, मुझे आई नो दैट कि यू पीपल आर फ्री ऑन दैट डे। तो मैंने उनसे यही कहा एंड आई एम आल्सो फ्री ऑन मंडे। मेरी कोई क्लास नहीं और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होती।
तो अभी उनसे, और उन्होंने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया, मेरे से प्रॉमिस भी किया कि दैट आई विल चेंज दैट एंड फॉरवर्ड यू आफ्टर दैट रिवाइज्ड टाइम टेबल। तो मैं आज इनसे दोबारा बात कर लेती हूँ। तो लेकिन इस वीक की जो क्लास अभी हम पूरी नहीं ले पा रहे आपके एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपकी कमिंग डेज में, बल्कि आपके सीआर से बात करके जब आप लोग अवेलेबल हो उस टाइम में मैं ले लूंगी, या वीकेंड पे फिर इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप ऐसा करो कि आप ये क्लास जो है वो आप लीव कर दें। तो बॉयज को मैं लिंक भेज देती हूँ, बीएस के जो बॉयज भी मिसिंग है इसमें से, वो पूरी क्लास ले लें। बाकी फिर आप लोगों की मैं एमएससी वालों की बॉयज गर्ल्स की इकट्ठी फिर ले लूंगी। मैम बीएस के बॉयज हैं क्लास में, एमएससी के नहीं है और उनको लिंक भी नहीं गया, तो इट्स ओके मैम, हम लीव कर देते हैं। नहीं ठीक है, फिर आप बेटा ऐसा करें कि आप लोग भी लीव कर लें। इफ यू वांट टू टेक दिस क्लास इट्स ओके, कि आप फिर वो वाली मिस कर दे, लेकिन मैं चाह रही थी कि अटेंडेंस आपकी पूरी उसमें हो फिर जाए। अटेंडेंस इशू आएगा, इसलिए हम लोग ये स्किप कर देते हैं। तो आप ऐसा करें कि अटेंडेंस आप उसी में फिर पूरी आप लोग अटेंड करें क्लास, ठीक है। यस मैम। तो इस वीक की क्लास फिर मैं नेक्स्ट जो आप जो भी मंडे को अगर होती है तब, या फिर हम वीकेंड पे फिर ले लेंगे, ठीक है। इट्स ओके मैम, थैंक यू। तो आप ऐसे करें, अब आप लीव कर दें। बाकी अगर कोई मिसिंग है बीएस के स्टूडेंट्स तो वो ज्वाइन फिर कर लेंगे, क्योंकि वेटिंग में काफी बच्चे आ रहे, तो बजाय इसके कि फिर वो भी रह जाएं और आप लोगों की भी पूरी ना हो क्लास, ठीक है। इट्स ओके मैम। और ये कन्वे कर दीजिएगा, आप अपने ग्रुप में कन्वे कर दो कि मैम ने कहा कि क्लास जो है वो हम इस वीक की क्लास को मैनेज के बाद कर लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, थैंक यू बेटा। ओके जी। सो वेयर वी वर, कहाँ थे हम? प्लेस पे, ठीक है जी। So the geographical location serves also in the concept of nationalism and national states. ये आपकी बात हो गई है हमारी क्लियर। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस का। अब प्रैक्टिस में सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो एक्टिविटीज फॉलो हो रही होती हैं, और एक जैसा कम्युनिटी बनती है, ग्रुप बनता है उन लोगों की जो कि प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड से भी उनका लिंक हो सकता है, और किसी रेजिडेंशियल कम्युनिटी भी बन सकती है। लेकिन वहां पे भी वो लोग जो कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हो, जो एक्टिव लाइक सोशली एक्टिव हो, कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी में वो engage हों. So that is a type of community that is formed due to practice. So communities can be formed by people who are from the same profession or undertake the same activities. अब इसकी एग्जांपल है क्या, कम्युनिटी ऑफ यंग डॉक्टर्स। जरूरी नहीं है कि यंग डॉक्टर्स की हो, that can be a general community of doctors, and these communities are both at national and international level. तो ये किसी भी लेवल पे बन सकती हैं कम्युनिटी, जो है नेशनल भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो दूसरे कंट्रीज से डॉक्टर्स हैं वो भी आपस में लिंक होते हैं। आजकल तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बाय यूजिंग इंटरनेट जो है एक बहुत अच्छी कम्युनिटीज ग्रुप्स बन रहे हैं ऑनलाइन, जो कि शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को, बहुत सी मेडिसिन जो है उनको डिस्कस करते हैं। और इसी तरह जो लाइक इंजीनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं वो उनके ग्रुप्स बने हुए हैं। इसी तरह टीचर्स जो हैं स्कूल्स कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के टीचर्स, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एंड दे शेयर that their ideas regarding teaching and learning. So this is also, that is a kind of community that is formed due to the practice. ठीक है जी। तो ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। देन लास्ट इसमें जो चीज आती है that is circumstances. Some communities are brought together by external events or situations. For example, a community of refugees. अब कुछ communities जो बनती हैं वो ये नहीं होता कि that is वो local हैं या international हैं कि किस level पे हैं, वो बनानी पड़ती हैं। उसकी रीजन होती है हालात और वाकयात को देख के कि circumstances क्या हैं, उनकी
जरूरत है बनाने की, उनको बनाया जाता है खुद से। ये नहीं है कि वो इंटरेस्ट लोगों का हो या ना हो, दे वांट टू परफॉर्म और एक्ट और नॉट, ये चीज इस चीज से हट के उसकी जरूरत होती है। हालात के मुताबिक, वाकयात के मुताबिक कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी बनती हैं। उसमें एक जैसा कि कम्युनिटी बनी हुई है, हमारे यहाँ भी बनी हुई है, दैट इज फॉर द रिफ्यूजीज। जो लोग दूसरे कंट्री से लाइक उनका कोई यहाँ पे शेल्टर का, फूड का, किसी और चीज का नहीं अरेंजमेंट होता, सो there is a community that can help them, that can guide them how to survive, how to live in the new area, new country, new place. So this is the type of community that is formed due to the circumstances. अच्छा जी, अब ये हमने जो ऊपर की हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, दोज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिटी दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू एंड द रीजंस दैट व्हाई कम्युनिटीज आर फॉर्म्ड। वो एक कुछ रीजंस थी, कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिटी थी। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट concepts. But here we are going to discuss next basic types of community. कि वैसे generally हम community को define जब करते हैं तो types उसकी basic दो ही ली जाती है, जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो एक कहा जाता है शहरी community और एक होती है रूरल community, जिसको हम देहाती community कहते हैं। तो इसमें बेसिक तो यही दो टाइप्स नजर आती हैं जब हम जनरल बात करें, डिफरेंशिएट करें। उसके बाद फिर नेक्स्ट फर्दर फिर उसमें जो आती जाती है डिफरेंशिएशन, सिटीज में भी डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज आती हैं, जिसमें कि वही फिर बात आ जाती है स्टार्ट में जो हमने किया है कि इंटरेस्ट की बात आ जाती है, एक्शन की बात आ जाती है, सर्कमस्टांसेस की बात आ जाती है। लेकिन बेसिकली बरादरी कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज कास्ट बेस्ड कम्युनिटी भी होती है, वो भी बनी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप आ जाती है। लेकिन इसमें जो बेसिक हम देखते हैं तो दो जो कम्युनिटीज में डिवाइड किया जाता है कम्युनिटी को, दैट इज रूरल कम्युनिटी एंड अर्बन कम्युनिटी। तो सबसे पहले रूरल कम्युनिटी, द रूरल कम्युनिटी कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ नेचुरल फिनोमेना दैट एवरी सोसाइटी हैज अ रूरल कम्युनिटी। अब हम जब बात करते हैं इवन सिटीज में भी जो लोग होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कभी कहते हैं कि हमारी बेस जो है वो गांव की है, सुना है कभी आप लोगों ने? यस मैम। कि उनसे जो बिलोंग करते हैं, और इवन स्पेशली मे बी आप लोग अब नाउ यू पीपल आर ग्रोन अप, बड़े हो आप लोग, नॉट वेरी लाइक अर्ली टीनेजर्स। तो उसमें ये आपने सुना होगा जब शादियों की स्पेशली या रिलेशनशिप्स जब बिल्ड होते हैं तो उसमें ये बात पूछी जाती है कि आप पीछे से या गांव से, किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, आपके फोर फादर्स। ऐसा हुआ है कभी एक्सपीरियंस आप लोगों को सुनने में आया? यस मैम। तो ये चीज होती है कि दैट इज जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ ना नेचुरल फिनोमेना, कि सबसे पहले जो एक चीज माइंड में आती है कि दैट इज एवरी पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी दैट मस्ट हैव हिज और हर बेस दैट इज फ्रॉम द रूरल एरिया, रूरल कम्युनिटी। तो ये कहीं ना कहीं से जाके वो हमारी कम्युनिटी वहीं पे लिंक करती है, सो दैट एवरी सोसाइटी हैज रूरल कम्युनिटी। अब हमारे यहाँ बेसिकली जो एक कंसेप्ट है, शायद आप लोगों का तो नहीं मुझे आइडिया कि कोई ऐसा है माइंड में कि नहीं, लेकिन मेजोरिटी हमारे यहाँ जनरली जो अब तो बहुत खैर अवेयरनेस है, लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो उसमें ये समझा जाता था कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो दूसरे कंट्रीज इवन चाइना, जापान, ऑल दीज कंट्रीज, कि ये सब ऐसे ही हैं जैसे कि हमें खूबसूरत नजर आते हैं, वहां पे गांव नहीं होते। हम बहुत कुछ बोलते हैं कि जी हमारे गांव में रूरल साइड पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये फैसिलिटीज नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट था कि शायद वहां पे गांव नहीं होते, वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, यहाँ पे ये इश्यूज नहीं होते, कि वहां पे जो नजर आता है कि बस दिखाया जाता है कि दिस इज दिस कंट्री। तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी, हर कंट्री, हर एरिया में रूरल लाइफ है, रूरल कम्युनिटी सरवाइव करती है।
उसमें प्रॉब्लम्स भी होते हैं. हाँ, दो वी कैन से दैट इज लेस और मोर, ये डिफरेंस आ सकता है, बट ये कि मेजोरिटी दे आर हैविंग सच टाइप ऑफ मैटर्स, उनके लाइफ के इश्यूज भी होते हैं, सब कुछ होता है. एंड बेसिक इज दैट दे हैव रूरल कम्युनिटी के होती है, नो मैटर हाउ डिस्टिंक्ट देयर कल्चर और पैटर्न ऑफ सोशल लाइफ. यही बात जो भी मैंने बोली है कि ये डिफरेंस का नहीं होता कि वहां पे कल्चर कैसा है और उनका पैटर्न ऑफ सोशल लाइफ कैसा है, लेकिन हम बेसिक बात जब करते हैं कि दे हैव रूरल कम्युनिटी. एवरी सोसाइटी, पीपल हु हैव extreme similarities in objectives and ambitions of living shape up a community that is product of natural and free will. इसमें एक जो लोगों का आपस में, जैसे कि रूरल कम्युनिटी की हम बात करते हैं, तो उसमें क्या इंटरेस्ट होता है कॉमन, दैट दोज पीपल गेट देयर अर्निंग for their living mostly from the agriculture and from their that land cultivation. तो इन चीजों से ये एक कॉमन सा इंटरेस्ट वहाँ का होता है. तो इस तरह एक ये जो बन जाता है एक कम्युनिटी का, उसमें एक नेचुरल दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एंड फ्री विल, कि उनकी विल इसमें किसी की नहीं होती कि हमने रूरल कम्युनिटी बनाई है या बनानी है, ये बनी होती है. दैट इज नेचुरल. जो कि रूरल एरिया से लोग बिलोंग करते हैं, वो एक कम्युनिटी एक खुद से बनी होती है. उसमें ये नहीं होता कि खुद से बनाया कि हम गांव में रहते हैं या हमारा गांव का एरिया है तो हमने ये कम्युनिटी बना ले. नो, दैट इज अ जब रूरल कम्युनिटी की बात होती है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल एंड फ्री विल, दैट इज दिस कम्युनिटी. So agriculture is a fundamental part of the identity of a rural community. People of rural communities have a higher degree of homogeneity in their character and more face-to-face interaction with each other. So this I have already discussed with you people कि उनका आपस में जो होता है that is homogeneity, जो उनके character में, like उनके जो lifestyle है obviously, जो mostly नजर आ जाता है कि ये this person belongs to a rural community. तो ये इसमें उनके जो फेस आपस में इंटरेक्शन होती है face to face with each other, that is also more than the as compared to the urban community. Necessary facilities such as schools, hospitals, police stations, etc. are mostly absent from such a community life. This is also quite common thing that you people must be knowing it very well, that in the rural community, this type of facilities are not available in that form which are available in the urban community. But with the passage of time, in the beginning, and if we talk about the past years, so this was that rural communities were lacking in this all these facilities. But nowadays, if we see or if we observe these things, that schools, these communities are also getting the education also, and the hospitals and such type of all these facilities we are getting. Though this is quite gradually happening and slowly, but it is happening. कि उस तरह का अब हालात नहीं है कि जैसे पहले के बिल्कुल स्कूल से, कॉलेज से, एजुकेशन से दूर रूरल कम्युनिटी को समझा जाता था. हेल्थ इश्यूज उनके लिए बहुत ज्यादा थे. इसी तरह लॉ एंड जस्टिस का इशू जो है कि जैसा कि कोई क्राइम्स होते हैं या कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन वगैरह तक अप्रोच उनकी. तो दीज थिंग्स आर चेंजिंग ग्रेजुअली, आर कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आती है? यही आता है ना कि एजुकेशन का, हेल्थ प्रॉपर हो, आपका लॉ एंड जस्टिस का, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज मिले. मैम अगर ये फैसिलिटीज हो फिर भी उसे गांव कहेंगे? सॉरी, अगर ये फैसिलिटीज मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन वगैरह ये हो फिर भी उसे गांव कहेंगे? नहीं, इसमें देखिए, बात ये नहीं है कि गांव अगर है तो वहाँ पे ये फैसिलिटी हो तो उसको गांव नहीं कहा जा सकता या उसको रूरल एरिया नहीं कहा जा सकता. ठीक है, तो वहाँ पे आप व्हाट इज गांव? एक small area or small place, one the people who are living in that area and who are
getting their earning and spending their life according to that agriculture way of life और cultivation होती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको उस स्टैंडर्ड के अगर नहीं तो कम से कम उनके स्टैंडर्ड की चीजें तो फैसिलिटेट हो सकती है ना। ये नहीं है जरूरी कि उतने ही बड़े स्कूल्स कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स या उनके जो है सारा कुछ बने, लेकिन उनके स्टैंडर्ड का उतना तो हो सकता है ना। दैट इज दैट इफ दैट इज अ बेसिक, हम अगर रूरल लाइफ को रूरल कम्युनिटी को अगर बेसिक कहते हैं तो एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज तो प्रोवाइड होनी चाहिए ना। तो उससे तो ये नहीं होगा कि रूरल उनका लाइफस्टाइल और उससे तो कोई उसमें चीज हाँ बेटर हो जाएगा। दैट इज अ गुड थिंग कि उनको अगर ये फैसिलिटी मिले तो वही लाइफस्टाइल जो वो गुजार रहे हैं उसमें बेटरमेंट आ जाए। अगर उनके हेल्थ के इश्यूज सॉल्व हो जाए, अगर उनका प्रॉपर जो है बच्चे जो हैं बड़े जो हैं वो अगर एजुकेशन उनको मिल जाए तो हाँ ये ऑल इन ऑल चेंज तो नहीं हो सकता। अगर सिर्फ ये चीजें प्रोवाइड हो जाए, स्कूल हो जाए, हॉस्पिटल, तो वो एक शहर तो नहीं बन सकता, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आजकल है बहुत से गांव जो है रूरल एरियाज बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उनको हम गांव ही कहते हैं क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज उधर पहुंच रही है तो दैट इज अप टू देयर लेवल, कि उस लेवल की ही है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि वो अब बहुत कोई हाई फाई किस्म का या जैसा कि सिटीज में होता है कि एक कदम कदम पे स्कूल्स हैं तो वहां पे अगर स्कूलिंग स्टार्ट हो गई हुई है बट दैट इज इनफ फॉर देम कि अगर एक स्कूल गांव में है या 2 स्कूल है गर्ल्स की है बॉयज की है तो एटलीस्ट उनको कुछ किसी लेवल तक उनकी कंपनसेशन हो जाती है। तो दिस इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में यही नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे प्लान की जाए चीजें, स्मॉल स्केल पे भी चीजें प्लान हो तो बट जो लेकिन ये जो हम कहते हैं कि बुक्स फॉलो करते हैं हम या जो बात करते हैं स्पेशली इन स्टडीज, तो ये वो होता है जो जनरली एक आइडिया बना हुआ है, लेकिन ये आजकल ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी ये बिल्कुल ही नहीं है कि वो नापैद हैं, बिल्कुल उनका वजूद ही नहीं है, नहीं है ये फैसिलिटीज। दिस इज बट दीज आर लेस in number and at a lower scale, but changes आ रही हैं और आई हैं and hopefully you people will also agree with me for this कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये चीजें जो हैं वो इनमें lacking है। So typically inhabitants of a rural community have traveled to the nearest city or town for access to necessary facilities like medical care etc. तो ये भी अभी तक है ऐसे कुछ एरियाज बहुत बैकवर्ड जो बिल्कुल जहाँ पे लाइफ का एक कॉन्सेप्ट जो था टोटली डिफरेंट था, लेकिन वहां पे भी अब इतनी चेंज कम से कम आ चुकी है कि वो लोगों ने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा बेटर कर लें। लेकिन अभी स्टिल कुछ ऐसे हैं एरियाज यहाँ नहीं कि सिर्फ हमारे कंट्री में, इन एवरी सोसाइटी, जो बिगिनिंग में मैंने बात की आपसे कि एवरी सोसाइटी हैज दिस टाइप ऑफ एरियाज रूरल कम्युनिटी। तो वहां पे ये बेसिक जो दिस इज अबाउट द पास्ट, तो पास्ट में ऐसा था और वाकई ही ऐसा था कि बहुत से लोगों को ट्रेवल करना पड़ता था अपने नियरेस्ट सिटी को बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी, इवन फॉर फूड एंड फॉर रेस्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन अभी ऐसा चेंजेस तो हैं बट नॉट एट दैट स्केल, अप टू दैट स्केल कि वो सब कुछ कवर हो गया, बट होप फॉर द गुड सबके लिए बेहतर हो। मैम हमसे कोई पूछे बेसिक डेफिनेशन विलेज या सिटी की तो हम क्या बताएंगे? विलेज या सिटी की डेफिनेशन अब ये आपके सामने है कि दैट इज सच दैट कम्युनिटी वेयर देयर इज दैट इज बैकवर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? दैट इज द facility of schooling, education, hospital or health, then law and order, law and justice facilities. So these are the infrastructure, and there where there is proper infrastructure missing hoga, that is a rural community, that is a gaon, ठीक है। And where there is a proper infrastructure is introduced and followed by the communities and by the people of that area, that is obviously that is urban or city area। अभी देखिए ना, एक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ पे अगर सिटीज में देखूं तो
रोड्स हैं, रोड्स पे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। गांव में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आ गया ना डिफरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब रोड्स ही नहीं है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का या इसका क्या इश्यू बन सकता है? ठीक है ना। मैडम ये जो छोटे छोटे टाउन्स बने होते हैं अर्बन एरियाज की साइड पे, मैडम इनमें का अगर कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल भी ना ये हम हो, उसमें सब अर्बन में आ रहे हैं। ये देखिए, सब अर्बन कम्युनिटीज आर ऑफन परसीव्ड एज इंटरमीडिएट टू रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज। जो अब अभी हमने बात ऊपर की है कि ये अर्बन कम्युनिटी दैट इज कि वो जो बिल्कुल बैकवर्ड होती है, जिसमें बिल्कुल ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं सिरे से, किसी चीज को फॉलो ही नहीं किया जाता, कि ना एजुकेशन का पता होता है, ना किसी को हेल्थ एंड केयर का पता होता है, ना किसी को लॉ एंड जस्टिस का पता होता है, रूल्स रेगुलेशंस का। बस लाइफ गुजर रही होती है। सो दैट इज द typical rural community. But now suburban community is that community that perceive such intermediate that is a middle, एक जो कहते हैं कि मॉडरेट सी होती है, ना शहरी ना देहाती, that is a just in between community, that is suburban, that is not that much rural but not that much urban also. तो वो बहुत ज्यादा शहरी भी नहीं होती, that is why it is known as suburban. ठीक है। तो ये एक सब अर्बन कम्युनिटी होती है जो कि कुछ डेवलप हो जाती है अर्बन रूरल कम्युनिटी। They are more abundant in population as compared to the rural community and less in number relative to an urban community. Such communities are often outlying a larger city. They have limited resources and little political autonomy. मैम स्टूडेंट्स को अलाउ कर दे प्लीज। यस मैम। हाँ जी, ठीक है जी। ये तो आपका हो गया सब अर्बन की हमने डेफिनेशन की है। अच्छा जी, सब अर्बन में अब आ जाता है कि अपार्टमेंट्स आर अनकॉमन in a suburban community. Suburban areas mostly began to emerge in the 19th and 20th centuries as a result of improved infrastructure as railroad transport that facilitated commuting. Suburban communities are mostly settled around an abundance of adjacent flat land. अब आपने ये देखा होगा कि जब भी बात आपने की कि टाउन्स होते हैं जो कि थोड़े बेटर डेवलप्ड होते हैं, तो दिस इज अ काइंड ऑफ सबअर्बन कम्युनिटी, कि जहाँ पे जो एरिया है दैट इज बिगर देन और ब्रॉडर देन द एरिया ऑफ रूरल एरिया, बट दैट इज अ बिट फैसिलिटेटेड एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नहीं है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे भी होता है सब अर्बन में, नहीं, यहाँ पे बेटर होता है, इम्प्रूव्ड होता है, बट ये कि होता है। अर्बन कम्युनिटी An urban community is often perceived as the opposite of rural community. अब बिल्कुल opposite उसके आ जाती है। अब जैसे अभी आपने बात की कि उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो अब आपको अगर पता हो कि रूरल कम्युनिटी क्या है, तो where there is nothing, no infrastructure, no facility, that is a rural community. और जो उसका opposite होता है, that is urban community. The lifestyle of an urban community is highly impersonal, complex and heterogeneous in their identities and lifestyle. अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड हो जाता है, जब आपका एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका सोशल सेटअप चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी, आपकी लाइफस्टाइल, सब कुछ that is differ from the rural community. Communities are the product of rational choice. There is a complex division of labor with specialization in professions and jobs, which shapes up the identity of an urban community. अब communities जो है उसमें जो है rational choices जो होती हैं, इंसान की जो क्या उसको कहते हैं उर्दू में, कि अकलमंद जो और एक अच्छे समझ बूझ से
जो भी आपकी सेटलमेंट होती है या आप फैसला करते हो, डिसीजन करते हो, that is a rational choice. And view is a complex division of labor with specialization in professions and jobs. ठीक है जी. मॉडर्न जी. मैम आज के लिए काफी है. यस मैम. यस मैम काफी है आज के लिए. हाँ, this is end. यस मैम काफी है. ये आपके लास्ट जा रही है. दिस इज लास्ट स्लाइड विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है जी. तो इसमें अभी मैं आपसे यही कहने वाली थी कि अभी हम इसको एंड कर देते हैं. दिस इज कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लास्ट स्लाइड है इसकी, वो आप देख लीजिएगा. और बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टाइम and we all have to get ready for the iftar. So take your time, have a good time with the iftar also, and after iftar also pray for everyone. सबके लिए दुआ करें.